नमो हरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो वजायाणं नमो लोय सवसावणं नमो सवसावणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव पणासणो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च संवेशी मंगलानं च सर्वेषां परममः वै मंगलम् परममहै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद नमो अरिहंताणं नमो हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो आयरियाणं नमो वजायाणं नमो वजायाणं नमो लोय सवसावणं नमो लोय सवसावणं ऐसो पंचन मुक्कारो ऐसो पंचन मुक्कारो सव पाव पणासणो सर्व पाव प्रणाशनो मंगलाणं च संवेशी मंगलानं च सर्वेषां परममः वै मंगलम् परममहै मंगलम् ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद निज स्वभाव से सद्गुरु निज स्वभाव से सद्गुरु अगुरु लघु सर्वज्ञ है गुरु लघु सर्वज्ञ है सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु सत्यम निश्चय वन्द्य है सत्यं निश्चय वन्द्य है 33 कोटि देवगण 33 कोटि दैवगण विश्वहितार्थे स्वागतम् विश्वहितार्थे स्वागतम् जग कल्याण के यज्ञ में जग कल्याणक यज्ञ में मंगलमय द्यो आशीषम् मंगलमय दो आशीषम् सिद्ध स्वरूपी मूर्त मोक्ष सिद्ध स्वरूपी मूर्तमो गलती भूल को माफी दो गलती भूल को माफी दो व्यवहार सद्बुद्धि हो व्यवहार सद्बुद्धि हो निश्चय
मे अभिवृद्धि द्यो निश्चय में अभिवृद्धि दो। जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। 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 શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને આંખોનો સદઉપયોગ આંખોનો સદઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપોને કરી શકું એવી દાદા શક્તિ આપોને આનંદ જન્મારા ખોયા ચામડાની આંખથી મારા કોયો ચામડાની આંખની ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગી દ્વેષી પાલખી ચોટી નજર ત્યાં ઉચકી રાગી દેશી પાલખી નજરું ના ઉતરે ઝેર નજરોના ઉતરે છે પ્રતિક્રમવાની ભક્તિ આપોને પ્રતિક્રમવાની ભક્તિ આપોને ચક્ષુમાં નિતરે અમી ચક્ષુમાં નિતરે અમી કારુણ્યવાણી બરી મસ્તી આપોને કારુણ્યવાણી ભરી મસ્તી આપોને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને અવસ્થા દ્રષ્ટિ વાળી કરામતો પુદ્ગલની અવસ્થા દ્રષ્ટિવાળી કરામતો પુદ્ગલની દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી દિવ્ય ચક્ષુ પ્રકાશક તત્વ દ્રષ્ટિ સ્વરમણી આત્મનેણે જોઈને આપને જોઈને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપોને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપોને દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી સ્વપર નિહિત કર શુદ્ધિ આપોને આંખોનો સદઉપયોગ આંખોનો સદઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપોને કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપોને પરપોટા વ્યવહારે આયુવાળા કર્માધીન પરપોટા વ્યવહારે આયુવાળા કર્માધીન દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મિકેનિઝમ મરણાધીન દોડાવે વ્યવસ્થિત જ મિકેનિઝમ મરણાધીન સંયોગો વિયોગી સંયોગો વિયોગી
તેથી સગળી દેહાદ્યાસી વૃત્તિ બાળોને દેવી સગળી દેહાદ્યાસી વૃત્તિ વાળોને પાંચાજ્ઞા પંચામૃત પંચામૃત સરસ પાચક પૌરુષાર્થી પૃષ્ટિ આપોને સરસ પાચક પૌરુષાર્થી પુષ્ટિ આપોને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને ચીકણી કે મોડી બધી ફાઇલો છે નિકાલી ચીકણી કે મોરી બધી ફાઇલો છે નિકાલી દેખીતા જ્ઞેયો દ્રશ્યો પૂતગલીને પરાધીન દેખીતા જ્ઞેયો દ્રશ્યો પૂતગલીને પરાધીન સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા સર્વત્ર શુદ્ધાત્મા અબળક ભેદી બુદ્ધિ આપોને અબળક બુદ્ધિ આપોને જોઈને જાણીને જોઈને જાણીને દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપોને દેહ સાથે વિતરાગી મુક્તિ આપોને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા જોઈને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને શુદ્ધાત્મા થવાની દાદા શક્તિ આપોને આંખોનો સદઉપયોગ આંખોનો સદઉપયોગ કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપોને કરી શકું એવી દાદા દ્રષ્ટિ આપોને જય સચ્ચિદાનંદ जय सच्चिदानंद समझ में आया सही है आ गया समझ में आ गया क्यों समझो समझो ये कैसी बात है क्या प्रवीण जी हो जाएंगे तो सामने क्या दिखाई देगा पापा ही दिखेंगे या फिर मैं दिखता है सामने बैठा मैं दिखूंगा तो ये मन वचन क्या आएगा चौला दिखेगा कि शुद्धात्मा दिखेगा बराबर है भाई मैं शुद्धात्मा में रहेगा तो क्या होगा सामने भी शुद्धात्मा दिखेंगे देखिए यहाँ ये बताना चाहते हैं ये शुद्धात्मा जो ही शुद्धात्मा देखकर शुद्धात्मा होने की दादा मुझे शक्ति दो तो शुद्धात्मा दिखेंगे कब तक पहले मैं अपनी गद्दी पे बैठा हूं तभी आंखों का सदुपयोग करूं मैं ऐसी मुझे दृष्टि दो आज तक क्या था यही आंखों से सबको दोषी देखा है बराबर दादा लोगों ने क्या बताया कि हम हमारे ज्ञान में देखकर आपको बता रहे हैं कि जगत में कोई जीव दोषी नहीं है बात फिट हो गई है ना कमल जी बात फिट हो गई है ना फिर किसी का दोस्त दिखता नहीं है ना खाली दिखती बन के ही रश्मि बन के ही दिखता है ना हाँ क्योंकि हाँ ऐसी शक्ति मांगते हैं कि पहले यही आंखों से सारा जगह दोषी दिखता है दोस्त दूसरों के दिखाई देते थे अभी मुझे ऐसी शक्ति दो कि आपको जैसे कोई दोषी नहीं दिखता है सारे संसार से मेरी भी दृष्टि ऐसी हो रही है प्रॉब्लम क्या है दृष्टि का है कि चश्मे का है दृष्टि चश्मे का है
जिससे दिखता है। हाँ, कलरिंग ग्लास है तो सामने सब कलरिंग ही दिखेगा ना। तो यहाँ कौन सा कलरिंग ग्लास है? क्योंकि पीछे जो कर्मों के बीज बोकर आए हैं वो भी आज काम कर रहे हैं। पिछले जन्म का बैकअप कहाँ पे मिलेगा? बैकअप तो है ही ऑलरेडी, वो व्यवस्थित के कंप्यूटर में वो बाहर होता तो अभी चेंज कर डालते। हम के कच्चे में आया थोड़े, उसका सोर्स ढूंढ लेंगे ना। तो किसी हैकर को पकड़े भाई, इसको हैक करके चेंज कर दे भाई। बात समझ में आ रही है? ठीक है, यहाँ देखो आवाज नहीं आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ, हवा की बात हो रही है। हाँ, हवा तो हमें भी नहीं आ रही, तो टेंशन मत करो। तो मैं तो मस्ती कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ मेरी दृष्टि ऊपर जो ग्लास है वो ग्लास निकल जाए तो जगत जैसा वैसा दिखाई देगा, बराबर है? ग्लास निकल गया, पीला ग्लास, मुझे क्या लगा सारे सभी लोगों को पीलिया हो गया है, ऐसा ही दिखेगा जरा में। तो वास्तविकता में लोगों को पीलिया हुआ है, तो तेरे ग्लासेस ऐसे इसलिए ऐसा दिखता है। लेकिन हाँ, दादा भगवान ने बताया तभी हमें पता चल रहा है कि ये गलती ऐसी थी हमारी। तो पहले तो ऐसा लगता ही नहीं था, हमें तो ऐसा हम ही सही है बाकी सब गलत है, नहीं लगता ऐसा? आमतौर पर ऐसा ही रहता है ना। ठीक है, यहाँ हमें ख्याल में आता है कि हमने पहले क्या किया था कि आंखों का दुरुपयोग किया, जिसकी गलती है ही नहीं उसको हमने गलत देखा। तो ऐसा क्या हो गया, दादा को किसी का दोष दिखा ही नहीं। ज्ञान तो हमें वही दिया है दादा ने, तो उनको किसी का दोष दिखता नहीं है, तो हमें तो सबका दोष दिखता था। बात तो समझनी पड़ेगी क्या होना चाहिए। वही ज्ञान दिया है, तो कमी दादा ने देने में क्या की होगी, नहीं तो कंजूसाई की होगी देने में, परोसा थोड़ा कम पैसा होगा, परोसा कम है तो फिर पेट खाली रहेगा ना। बोलने का भी परोसा बैठो पूरा ही दे देना था ना, ये बाकी क्यों रहा? देने के लिए बैठे तो पूरा ही दे देना चाहिए। कर्ण और अर्जुन ऐसा दोनों भाई थे ना। तो कृष्ण भगवान से कुछ बात हुई अर्जुन की, अर्जुन ने क्या बोला कि मैं कर्ण सा कहूँ, जय सच्चा। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि ऐसा नहीं है, तो नहीं कि हम टेस्टिंग करते हैं, बराबर है। दोनों को सोने का एक पहाड़ दे दिया, एक पहाड़, और दोनों को बोला कि आपको ये सबको बांटने का है। तो अर्जुन ने क्या किया, वो 100 लेके वो भर भर के सबको दे रहा है। तो कर्ण ने क्या किया, जाके बोल दिया कि ये सोने का पहाड़ है, जिसको ले जाना ले जाओ। बात ख्याल में आ रही है? तो कौन ऊपर है? वो सोल से देने वाला नहीं। तो फिर उसको बात समझ में आ गई। वैसे यहाँ भी दादा को बोला अभी अभी आप ये सोवल से ऊंचे रहते हैं, इसलिए पूरा ही दे दो ना, देने बैठे ही आप तो पूरा दे दो। तो ऐसे कृपा करो कि हमें वो ज्ञान हाजिर है, बस एक बात तो करो, ऐसा बोलना पड़ता है, नहीं बोलना चाहिए। आपके पास आए और फिर भी मेरा दर्द नहीं जाए तो मैं आपके पास हूं, आपको लगे भाई मैं क्या काम में है, नहीं भी चलेगा आपको। दादा भगवान नहीं बोलते थे,
कि मुझे जो मिला अनंत कितने होता है, उस अनंत होता है, उस हमारी भावना थी कि मुझे जो मिले उसको अवश्य सुख मिलना ही चाहिए, उसको शांति होनी ही चाहिए। तो मुझे मिले और फिर फायदा नहीं हो तो काम का क्या है? तो बोलेंगे आपको है कि फायदा मिलना ही चाहिए, तो ये पूरा ही फायदा करा दो ना, छोटा छोटा क्यों करा दो? तो मिठाई का छोटा पीस दे तो दे दो, पूरा भर के ही मन चाहे इतनी खाते रहो, तो खाएंगे ना, फिर पूरा ही करेंगे ना। तो यहाँ क्या क्या था, अनंत अवतार ये चमड़े की आंख से देखने में हमने निकाल दिए, तो क्या कमाई की? तो दूसरों की गलतियां देख देखी हमने, गलतियां देखी तो क्या हुआ? देखिए जहां भी नजर चिपकी वहां राग द्वेष की है हमने, उसके अलावा कुछ किया? राग द्वेष करके क्या किया? तो सही मायने में देखो तो व्यवस्थित शक्ति ने हमें ये सारा संजोग मिलाती क्यों है? पीछे जो गूंज खड़ी करके आए थे हम, वो गूंज खोलने के लिए कितनी गूंज खोल दी हमने? नहीं देखना चाहिए? दिन प्रतिदिन गूंज कम हो रही है, वैसे की वैसी है कि बढ़ रही है? प्रोग्रेस तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए अभी हमें ऐसी नजर दो, ऐसी नजरिया दो कि जैसे अभी जो ये चर्म चक्षु का जहर है ना, वो उतर जाए। वो जहर है, इसके कारण हमारी दृष्टि खराब हो गई है और हमें उल्टा ही दिखता है। डायबिटीज बहुत बढ़ जाता है तो उसकी दृष्टि चली जाती है। सुना होगा, सुना कि नहीं सुना? तो यहाँ भी क्या लगे, जहर चढ़ गया तो पूरा उल्टा ही दिखाती है। इससे बोला कि नजरिया का जहर उतर जाए, ऐसे प्रतिक्रमण करने की हमें शक्ति दो। दूसरों की गलतियां देखते थे, वो गलती थी, वो पहले पता नहीं था, अभी पता चल गया तो अभी क्या, तो कभी वापस लौटने की शक्ति दो। तो वापस कैसे आएंगे? तो वो जो गलतियां देखी वो सबका प्रतिक्रमण करेंगे, तो आप वापस आना शुरू कर दिया आपने। अवस्था दृष्टि वाली करामतु पुद्गल। दादा भगवान कैसे थे? कोई भी व्यक्ति उनके पास पहली बार आता था, उनका जो फोटो गिरता था वो कायम के लिए रहता था। मुझे क्या उस जमाने में तो रोल आते थे ना, फिजिकल रोल आते थे कैमरा में, वो महंगे भी आते थे, उसको डेवलप भी कराना पड़ता था। इससे शायद एक ही फोटो गिराते होंगे। अभी तो डिजिटल जमाना आ गया ना, जितना फोटो लेना ले लो, डिलीट करना डिलीट कर दो, कोई टेंशन ही नहीं है ना। इससे हम प्रैक्टिकल हो गए, फोटो लेते ही रहो बार बार। ऐसा ऐसा मतलब वो बराबर है। लेकिन दादा भगवान को एक ही पिक्चर पड़ती थी सबकी। वो पहली बार जो पिक्चर पड़ी उसमें कोई बदलाव आता नहीं था सारे जीवन में। वो कितना भी गलत करे, कितना भी सही करे, कुछ भी करे, फिर भी उनकी दृष्टि में बदलाव नहीं आता। उनको तो पूरा नेकेड दिखता था कि भाई इसकी ये अवस्था है, आगे जाके क्या होने वाला, सारी बातें दिखती थी उनको। फिर भी आज सोचो आप कि आपको लगता है कि भाई ये पार्टी है कि आगे जाके मुझे 2-5 करोड़ का नुकसान कराने वाली है, क्या करेंगे आप? पार्टी के साथ व्यवहार चालू रखेंगे, डीलिंग चालू रखेंगे, पहले ही काट देंगे। तो सबको बोल देंगे इसको घुसने ही मत देना, और कहीं पे माल देने के लिए चेक करना, ये पार्टनर तो नहीं है ना कहीं। कितने पक्के हम। तो यहाँ देखो
तो दादा को तो सारा दिखाई देता था, फिर भी उसके प्रभाव में परछाई में आए नहीं है। हमको तो दिखाई दे कि ये हमारे आगे जगह काटने वाला है हमें या नुकसान कराने वाला है, तो हम तो रिश्ता ही बंद कर देंगे उसके साथ। यहाँ दादा ने कभी ऐसा किया ही नहीं किसी के साथ। हाँ, जहां भी संजोग मिला सभी को जागृत अवश्य किया है। सब आपस में ऐसा तो जागृत अवश्य किया है, लेकिन फिर भी किसी के लिए अभिप्राय पूर्वक नहीं रखा है कि ऐसा ही करने वाला ऐसा ही करेगा, इससे जागृत रहने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं इसके साथ। ऐसा कभी नहीं है। वो तनिक भी उसकी परछाई दिखेगी नहीं आपको उनके व्यवहार में। वो कैसी दशा होगी? कमल जी, आप व्यवहार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ ये बात समझने की है, ठीक है, हमारी दृष्टि अवस्था पे रहती है, अवस्था पे चिपक जाती है, अवस्था पे चिपक जाती है, इसलिए हम उसी को सही मान लेते हैं। आंखों से दिखता है उसको सही मान लिया हमने। वो सारी परेशानी किसकी है? जो दिखता है उसको सही मान लिया, उसकी परेशानी है। ठीक है, दिखता है वो रिलेटिव सत्य है, व्यवहार सत्य है, निश्चय सत्य है, ठीक है नहीं? तो व्यवहार सत्य तो बदलता ही रहता है, नहीं बदलता रहेगा। जन्म हुआ तो भी छोटा, चलना भी नहीं आता था, चलते सीखे कितनी बार गिर गए होंगे, बराबर है। कृपा छोटी थी, चलना सीख रही तो कितनी बार गिरी होगी। हर टाइम दूध चार चाटे लगाए होंगे ना आपने, क्या आपने अक्कल नहीं है, समझती नहीं है, इतनी में हम मेहनत करते फिर भी चलना सीखती नहीं है, ऐसा नहीं किया? ऐसे नहीं। क्यों नहीं किया? देखो, उधर हमारी समझ काम करती है कि अभी सीख रहे हैं, इससे गिरते रहेंगे, फिर धीरे धीरे दौड़ना शुरू करेंगे, फिर हमें हाथ पकड़ने की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, अभी चलना सीख रहे वहां तक उनको सपोर्ट देना पड़ता है, फिर जरूरत है। अब एज बड़ी होने के बाद चलने का प्रॉब्लम आता है तो फिर सपोर्ट देना पड़ता है, वो बात अलग है। वहां तक तो कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए यहाँ भी क्या है, ठीक है, अवस्था पे चिपक गए, दृष्टि हमारी अवस्था में चिपक गई, इससे फिर दोष दिखना शुरू हो जाता है। तभी सामने क्या होना चाहिए? दिव्य चक्षु प्रकाशक तत्व दृष्टि स्वरमी। ठीक है, अभी हमें दिव्य चक्षु की प्राप्ति हो गई। ठीक है, अभी क्या करने का? ठीक है, वो तत्व दृष्टि का प्रयोग करने का। तो क्या होगा उसके फल रूप में? स्वरमणता, अपनी खुद की रमणता शुरू हो जाएगी। अपनी खुद की रमणता शुरू हो गई आत्मस्वरूप की, तो बाहर के संजोग की कीमत कितनी रहेगी? बराबर है। આત્મનિર્ણય જોઈને મૂઢાત્માને ઠારવાની સિદ્ધિ આપો। ठीक है, यहाँ नहीं लिखा कि चर्म चक्षु के से देखकर, तो मूढ़ात्मा तो चर्म चक्षु वाला है ना, लेकिन उसका समन कैसे होगा? उसकी आंख कैसे बुझेगी? ठीक है, दिव्य चक्षु से देखेंगे तभी। इसकी जो जलन है, जो जल रहा है, वो आग बुझेगी कैसे? तो ये दिव्य चक्षु का प्रयोग करेंगे तभी सब में शुद्धात्मा भगवान दिखेंगे। तो पीछे के जो अभिप्राय पूर्वग्रह वाला हिसाब है, वहां जागृति रहेगी तो अभिप्राय पूर्वग्रह आपके पर हावी नहीं हो जाएंगे। तो हावी नहीं हो गए तो मुक्त रह पाएंगे। तो इसकी आग बुझेगी कि बुझानी पड़ेगी? अपने आप बुझेगी। तो कितना आसान हो गया।
દિવ્ય ચક્ષુથી જોયું નથી, સ્વપરને હિત કર શુદ્ધિ આપો। ये पहले दिव्य चक्षु से कभी देखा ही नहीं है, अभी भी दिव्य चक्षु मिल गया। वो दिव्य चक्षु बहुत कीमती है ना, तो तिजोरी में ही रखने का। कोई चोरी करके चला जाए तो फिर दोबारा तो ग्लास मिलने वाले, ग्लासेस मिलने वाले नहीं है। एक हम कैसे तिजोरी में रख देते हैं, कीमती है ना। ठीक है, यहाँ तो आप जितना प्रयोग करेंगे उतनी ये मन वचन का की प्योरिटी होती जाएगी, और मन वचन का की जितनी प्योरिटी होगी उतना इसका ही बोझा हल्का होगा। तो प्योरिटी कब होगी, तो जो माल भरकर लाए कर्मों का उस माल का निकाल होता है, उस माल खाली होता जाएगा। खाली कब होगा, तो उसके ऊपर आपका उपयोग है तभी, दृष्टि उसके ऊपर है तभी। अभी दृष्टि उसके ऊपर तो क्या होगा, ये दिखा है रिलेटिव पॉइंट से व्यक्ति, रियलिटिव पॉइंट से शुद्ध। किसने भेजी हमारे पास, व्यवस्थित शक्ति ने भेजी। क्यों भेजी, देखिए इसके साथ पुरानी गूंज पड़ी हुई है, वो गूंज खोलने के लिए, वो गांठ खोलने के लिए। तभी क्या करने का है, दादा इसका संभव से निपटारा करने की मुझे शक्ति है। बात आसान है, इतना समझ में आ गया तो प्रॉब्लम की तरह सीधी बात है। ठीक है, समझना इतना ही है, और कुछ समझने का नहीं होगा। ठीक है, पहले सभी की गलतियां देखते थे जैसे, तो अभी क्या हुआ, ठीक है, अभी दिव्य चक्षु का प्रयोग कर रहे हैं तो प्रकृति भी दिखती है, लेकिन नजर उधर चिपकती नहीं है, अटकती नहीं है, भीतर के भगवान पर जाती है। और भीतर के भगवान दिखाई दिए, कोई परेशानी रहेगी नहीं। सीधी बात है, कोई भी पेशेंट आता है, आप देखते हैं उसमें अदर डायग्नोसिस हो जाता होगा, देख के कर लेते हैं। अब फिर जरूर लगे तो बातचीत भी कर लेते हैं कंफर्म करने के लिए। तो वैसे यहाँ भी क्या था कि यहाँ ये आज्ञा का प्रयोग किया तो क्या होगा, ठीक है, उधर प्रॉपर दवाई हो जाएगी। प्रॉपर दवाई होगी मीन्स क्या, लेकिन उधर नए रागद्वेष खड़े नहीं होंगे। तो नए रागद्वेष खड़े नहीं हुए तो कोई बांधने वाला है हमें, पहली बात है। थोड़ी बात करो उस हिसाब से। परपोटा व्यवहार आयु वाला कर्मा, बबल होता है क्या, बुलबुला बोलता है, क्या बोलता है हिंदी में, बबल को क्या बोलता है, बुलबुला है। तो मेरी हिंदी कच्ची है ना, इसे पर कंफर्म कर लो तो सीख लो। तो बुलबुला होता है, उसका आयुष्य कितना होता है, थोड़ी सेकंड हो गई, 7 सेकंड हो गई। तो वैसे दादा भगवान क्या बोलते हैं कि ये भी क्या है, ये मनोवचन क्या है, वो भी बुलबुला जैसा है। कब सांस लेनी बंद हो जाए कोई गारंटी है, तो बोल सकते हैं मैं 100 साल जीने वाला हूं कि 200 साल जीने वाला हूं, कोई गारंटी से बोल ही नहीं सकता है। फिर भी हमें क्या रहता है, ऐसा लगता है, ऐसा रहता है वे कितना जिएंगे कोई गारंटी नहीं है। तो सबके साथ व्यवहार करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तभी ऐसा लगता है, हमें तो लगता है सामने वाला चला जाएगा, मैं तो रहने वाला हूं। तो बात बराबर है, तो जीने वाले हैं, बाकी सब जाने वाले हैं। ठीक है, यहाँ बात समझने की क्या है, ठीक है, इसको बुलबुला बताया, ठीक है, वो कब मिट जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, यहाँ भी बात दूसरी तरह से समझो, जो बुलबुला है उसकी कीमत कितनी करते हैं, होती है कीमत, नहीं होती है।
तो जैसे हम बुलबुला है वैसे सामने वाले भी बुलबुला ही है ना, बबल्स ही है, तो उसकी कीमत कितनी करने की। हाँ, जहां हमें हेल्प की है उधर उनका उपकार नहीं भूलने का। तो जहां हमारे साथ गलत व्यवहार किया है, ठीक है, वहां भी उपकार नहीं भूलने का। क्यों? ठीक है, हमें पिछले बारी कर्म से छुड़ा रहे, तो हमें जो पिछले बारी कर्म से छुड़ा रहे अपमान करके भी, तो हमारे लिए दुखदायी है कि उपकारी है? उपकारी है। ठीक है, समझ में रहेगा तो किसी प्रकार की दिक्कत खड़ी होगी नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या बोलते, दौड़ावे व्यवस्थित मेकेनिज्म बना देंगे। ठीक है, व्यवस्थित शक्ति कैसी है? ठीक है, हर एक जीव को दौड़ा रही है। डेस्टिनेशन कौन सा है? शमशान का। ये बुलबुला खड़ा हुआ, लास्ट फाइनल डेस्टिनेशन तो शमशान का है। वे आपको जितनी जल्दी है ज्यादा दौड़ो, तो दौड़ के कहां पहुंचे? शमशान में। ठीक है, शमशान में पहुंच रहे हैं तो अभी हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? वे सब व्यवहार समेट लो। अभी जितना भी व्यवहार लंबा चौड़ा किया है अभी उसको सिकुड़ लो। पैसे दिए वो तो हम राइट ऑफ कर सकते हैं, तो जिससे लिए वो हिसाब चुका दिया तो कोई क्लेम करने के लिए आएगा? या हमारा पैसा दबा के चले गए बोलने आएगा कोई? कोई नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ ये ख्याल में रहेगा तो आपका व्यवहार आसान हो जाएगा, जागृति वाला हो जाएगा। संयोग वियोगी तेवी सगरी देहाद्यासी वृत्ति बारह। जो संयोग मिलते हैं, आमतौर पर हमें क्या लगता है कि संयोग इकट्ठे हुए हैं। संयोग इकट्ठे होते तभी काम बनता है, लेकिन इकट्ठे किस लिए हुए हैं? उसका वियोग होने के लिए। आप यहाँ आए, डॉक्टर साहब कितना भी बोले, रह जाएंगे इधर, रहेंगे नहीं, वो तो टाइम हो गया, अपने आप निकल जाएंगे यहां से। ठीक है, वैसे यहां समझ में क्या रखने का है कि ये सारे क्या है, संयोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन वो सारे संयोगों का वियोग होने वाला है वापस। ये संयोग बिखरने के लिए इकट्ठे हुए हैं, रुकने के लिए, रहने के लिए नहीं। अभी ये ख्याल में रहेगा तो धीरज बनी रहेगी कि नहीं बनी रहेगी? किसी के साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया तो धीरज से काम ले पाएंगे ना? मालूम है कि बेटे ये संयोग बिखरने वाले काम के है ही नहीं, तो टेंशन रहेगा ही नहीं। ठीक है, यहाँ हमारा ठिकाना कब पड़ता है? ठीक है, समझ में रहेगा, आज्ञा को हम समझ लेंगे और समझ के साथ आज्ञा में रहेंगे तो सब संजोगों का निपटारा हो जाएगा कि नहीं? जय सच्चिदानंद। ठीक है, सब संजोगों का निपटारा हो जाएगा। जय सच्चिदानंद। आप करेंगे तो मुझे भी करना। आप कमाई करो, मैं नुकसान करो तो चलेगा नहीं। ठीक है, यहाँ क्या बोलते हैं? ठीक है, ऐसा पुरुषार्थ भीतर प्रकट कर दो कि जो भी संजोग आते सारे संयोगों को हम संभव से उसका निपटारा कर पाए। ठीक है, अनुकूल है, प्रतिकूल है, सरल है या कठिन है, जो भी है तो सभी का निपटारा करने का है। तो निपटारा होगा तो किसी का क्लेम बाकी रहेगा?
निपटारा करे तो क्या होगा? ठीक है, जो दृश्य है और ज्ञेय है, दृश्य दृश्य का काम करेगा, जानने वाला देखने वाला अपने स्वभाव में रहेगा, तो कोई फसल खड़ी होगी नहीं। ठीक है, यहाँ जो दृश्य है, जो ज्ञेय है, वो सब कैसे है? पौद्गलिक है। पौद्गलिक मीन्स वो प्राकृतिक है। प्राकृतिक इसके साथ क्या होता है कि उसकी अवस्था बदलती ही रहती है, कायम एक का एक नहीं रहता है। बच्चा छोटा है, बड़ा होगा ना, कैसा ही रहेगा काम के लिए, बुढ़ापे के बाद बदल जाए, बदलता ही रहता है ना, तो हर मोमेंट बदलता रहता है। लेकिन हमें लगता है, मान लो कि आप 80 साल के हो गए, फिर भी प्रवीण छोटा ऐसा ही लगेगा ना आपको? ऐसा ही लगता है। ये साइकोलॉजी ऐसी काम करती है, तो छोटा है ना। देखिए यहाँ इंपॉर्टेंस किसको देने का है? देखिए हमें ऐसी सूझ दो, ऐसी समझ दो कि सभी के भीतर हम भगवान के दर्शन करें। तो क्या है कि आज भेद है सभी के साथ, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, मैं भी अलग हूं। लेकिन वो भेद बुद्धि मिट जाए, तो भेद वृत्ति आखिर पूरी मिट जाए। और भेद वृत्ति मिट गई तो क्या होगा? देखिए अपना खुद का स्वभाव भी खुला हो जाएगा। क्या आपका शुभ नाम क्या है? रिचपाल सिंह। रिचपाल सिंह। रिचपाल सिंह। ठीक है, मैं रिचपाल सिंह जी हूँ। वो तो आपको नाम दिया ना, वो तो पहचानने के लिए दिया ना, पहचानने के लिए ना, केवल पहचानने के लिए नाम दिया ना? नहीं, तो नाम तो जो है ना, हाँ वैसे ही दिया है घर वालों ने। हाँ, घर वालों ने दिया, लेकिन पहचानने के लिए दिया ना। पहचानने के लिए भाई आप रिचपाल हो। हाँ, और आपने सही मान लिया? नहीं, सही मान लिया ना? नहीं मानना सही। सही नहीं माना तो क्या हो? सचमुच क्या हो? सही तो जो है ना, असली चीज है जो, उसको मानेंगे। और सही चीज कौन सी है? अपने कर्म है, और है जो है, अपने जो बोलते हैं सत्यनिष्ठा है, झूठ है, झूठ को झूठ बोलना, सत्य को सत्य कहना, ये चीजें है। तो वो तो बराबर है, लेकिन वो तो रिचपाल सिंह के साथ जुड़ी हुई है। वो सारी बातें रिचपाल सिंह से जुड़ी हुई है। वे सही मायने में समझो हम भारतीय है। जब तक शरीर है, जब तक जुड़ी हुई है जी, वो तो नहीं, उसके बाद तो नहीं है। जब मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि रिचपाल सिंह जी है, वो तो कायम के नहीं है ना, तो उसके जो गुण है प्रकृति के, वो भी कायम के नहीं है। नहीं, बराबर है। तो वो टेम्पररी गुण आए कब? कि सामने कुछ परमानेंट है तभी आएगा ना। हम भारतीय है, हम शब्द से जानते हैं कि मैं आत्मा हूं, मैं भगवान हूं, लेकिन आज अनुभव कौन सा है कि मैं ही रिचपाल सिंह जी हूं। ये कैसे पता चलेगा? कि मान लो कि कोई बाहर से जा रहा है, तो बात कर रहे हैं आपस में, रिचपाल सिंह जी तो बहुत अच्छे नेचर के हैं, उनका बहुत उपकारी स्वभाव है, सबको हेल्प करते ही रहते हैं, तो सुन के दुख होगा कि आनंद होगा? आनंद होगा। और कोई बोलता है, आपस में बात करे, इनकी तो बात ही करो मत, मुंह में उंगली डाल के बुलाओ मत हमारे पास, नहीं बोले वही ज्यादा अच्छा है, वो सुन के दुख होगा ना। अभी कौन से रिचपाल सिंह जी की बात करे वो भी आपको मालूम नहीं है, कौन बात करे वो भी हमें पता नहीं है, फिर भी असर हो जाती है ना। क्यों असर होती है? तो आपकी मान्यता में क्या बैठा हुआ है? लेकिन मैं ही रिचपाल सिंह जी हूं। अभी वो तो आपको पहचानने के लिए नाम दिया, नाम नहीं दिया तो नंबर देना पड़ता था, नहीं तो वो बैंक में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, प्रॉपर्टी कैसे ले सकते हैं, कुछ कर ही नहीं सकते ना।
लेकिन जो पहचानने के लिए नाम दिया उसको हमने सही मान लिया, तो सही मान के सबको फंसा भी दिया, फिट भी करा दिया कि मैं ही रिचपाल सिंह जी हूँ। और सही मायने में आप रिचपाल सिंह जी हो? सही मायने में तो नहीं हो, नहीं है। और फिर भी वो मान लिया हमने, मतलब फिट हो गया कि मैं ही हूँ। ठीक है, वो अभी जो वो मान्यता फिट हो गई है, वो मान्यता आपको परेशान करती है, और फिर भी हमें लगता है कि ये मान्यता हमें परेशान कर रही है। किसी को ऐसा लगता है कि यही मान्यता मुझे दुख दे रही है? फिर सही में हम खुद ही भगवान है, और भगवान कायम कहे कि टेम्पररी है? भगवान तो कायम क्या ना। पर हुआ क्या था कि आप रिचपाल सिंह जी हो गए, इसे टेम्पररी बन गए। इससे सारे संसार की सारे संयोगी की असर आपके ऊपर होती रहती है। ऐसी समझ तो पानी पड़ेगी ना, ये संयोग होते हुए भी आप उससे निर्लिप्त रह सको, निर्लिप्त रह सके, ऐसा तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? संसार में आपको परेशानी के संयोग हो, फिर भी आपका पेट का पानी नहीं रहे, आपकी समाधि नहीं चली जाए, ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। तो परेशान होते रहना चाहिए, परेशान होते रहना चाहिए। तो फिर तो परेशान भी नहीं होना और ये भी नहीं करना, तो होगा क्या? तो जहां तक मैं रिचपाल से जी हूँ, वो मान्यता है, वहां तक सारी परेशानी अनुकूलता सब आती रहेगी, तो परेशान होते भी रहेंगे। लेकिन ऐसी समझ तो होनी चाहिए ना हमारे पास कि हम भारतीय है, तो हमें ऐसी समझ होनी चाहिए कि संजोग कुछ भी आता है, फिर भी वो संजोग हमें असर कर जाए, हमारे पर हावी हो जाए, वो तो बात गलत है ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। जो भी संयोग है उसमें हमें खुशी रहे, हमारा आनंद बना रहे, हमारी शांति चली नहीं जाए, ऐसा तो होना चाहिए ना कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। आप जो भी भगवान को मानते हैं उनको आप सुबह में उठते तभी एक प्रार्थना करना। आप तो भी बड़ी एज वाले हो गए, आपको होमवर्क तो नहीं दे सकता हूँ, फिर भी दिए बिना रह भी नहीं सकता हूँ। क्यों? देखिए, होमवर्क इससे दे रहा हूं, देखिए हम जो है उसकी पहचान हो जाए तो हमारा काम निकल जाए ना। देखिए, हम भारतीय है तो हमारे भारतीयों का एक जन्म सिद्ध अधिकार है। कौन सा अधिकार है? कि जो हम है उसकी पहचान करना। बात ख्याल में आ रही है? मान लो कि भाई साहब है, वो ग्रेजुएट हुए, तो जन्म से ग्रेजुएट थे? जन्म से ग्रेजुएट थे? नहीं। तो ग्रेजुएट होने में कितने साल लग गए? 22 साल, 22 साल लग गए। तो जो नहीं थे वो होने में 22 साल लग गए, लेकिन जो है ही वो होने में कितना टाइम लगता है? कितना टाइम लगेगा? जितनी जैसा भी इतना टाइम लगेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। जो हम है ही, होने का नहीं है, आप हो ही। उस होने में टाइम नहीं लगता है, कोई पहचान कराने वाला चाहिए। ऐसा निमित्त मिल गया तो पहचान करने में टाइम नहीं लगता है, 1 घंटे में पहचान हो जाती है। वो नहीं मिला है वहां तक कोई ठिकाना नहीं होता है। ये सारी जिंदगी निकल गए, 70 साल निकल गए, तो फिर भी पहचान हुई नहीं ना खुद की। हो गई है, खुद की पहचान हो गई है। तो खुद की पहचान हो गई, इसकी मिसाल क्या है कि आपको एक भी चिंता नहीं होगी संसार में, उपाधि नहीं होगी। भगवान की भाषा में क्रोध मान माया सब चले जाएंगे। देखिए, ये प्राप्त करना
वो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, भारतीयों का, फॉरेन वाला का नहीं है। हम भारतीय है, इससे वो हमारा अधिकार है। वो अधिकार का प्रयोग करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप जो भी भगवान को मानते हो उनको सुबह में मैं थोड़ा होमवर्क देता हूँ कि ये भावना है, प्रार्थना है हमारी, तो ये गोली सुबह 5 बार लेने की है। मैं बोला तो आप पीछे रिपीट करना, आपको बात ख्याल में आएगी कैसे मांगने का, क्या करने का है। प्राप्त मन वचन काया से इस जगत के किसी भी जीव को किंचित मात्र भी दुख न हो न हो न हो, ये भावना कर सकते हैं। अच्छी है ना कि हम किसी को दुख देना नहीं चाहते, हमारा पक्का निश्चय है। ऐसे हम शक्ति जो भी भगवान को आप मानते हो उनसे मांग सकते हैं। तो ये मांगने के बाद भी क्या है तो कि हम पूरे दिन हमारा निश्चय क्या बना रहना चाहिए, मुझे किसी को दुख देना नहीं है। ये निश्चय रखने के बावजूद भी ऐसा हो सकता है किसी के मन में गलत ख्याल आ गया, वाणी दुख हो जाए, ऐसे निकल जाए, या व्यवहार में भी दुख हो जाए, ऐसा हो सकता है। जान के भी हो सकता है, अनजाने में भी हो सकता है, बराबर है। तो क्या करने का? ठीक है, रात को सोने से पहले दूसरी गोली लेने की है, वो एक ही बार लेने की। कैसे? वो कैसे लेने की वो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको उसका मर्म याद रह जाएगा। शब्द याद नहीं रहता उनको बोलना, आपको व्हाट्सएप करके भेज देंगे प्रवीण जी को। हे अंतर्यामी परमात्मा, आप हर एक जीव मात्र में विराजमान है, वैसे ही मुझ में भी विराजमान है। आपका स्वरूप वही मेरा स्वरूप है। मेरा स्वरूप शुद्ध आत्मा है। हे शुद्धात्मा भगवान, मैं आपको अभेद भाव से अत्यंत भक्ति पूर्वक नमस्कार करता हूँ। अज्ञानता के कारण मैंने जो दोष किए हैं उन सभी दोषों को आपके समक्ष जाहिर करता हूँ। उनके लिए हृदय से पश्चाताप करता हूँ। मुझे क्षमा करे। और फिर से ऐसे दोष कभी भी ना करूं। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। हे शुद्धात्मा भगवान, आप ऐसी कृपा करें जिससे हम में से भेदभाव मिट जाए और अभेद स्वरूप प्राप्त हो जाए। हम आपके साथ अभेद रूप से तन्मयाकार रहे। क्या बात है, जो दोष हुए हैं तो उधर आपको मन में जो गलतियां हुई है सारे दिन में वो जाहिर करने की है। देखिए यार, बात समझने की क्या है, देखिए जो गलतियां हुई आप जाहिर करते हैं, उसके लिए माफी मांगते हैं और पीछे पक्का निश्चय कर शक्ति मांगते, दोबारा ऐसी गलती मुझे नहीं करनी, ऐसे आप हमें शक्ति दो। इसका मतलब क्या हुआ? ठीक है, पहले आप गलती के पक्ष में थे, इससे गलती हो गई तो वो गलती का स्वीकार किया, उसके लिए एक क्षमा प्रार्थना भी की। अभी क्या करते थे कि पक्का निश्चय करके शक्ति मांगते कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसे अब हमें शक्ति दे। तो क्या हुआ था, गलती का पक्ष छूट गया। गलती का पक्ष छूट गया, नया करार आपने गलती के साथ किया नहीं है,
नई शादी उसके साथ नहीं की है गलती के साथ, तो नए बच्चे आएंगे गलती के? नहीं आएंगे। तो फिर आगे गलतियां आएगी, पीछे जितना करार किया उतनी गलतियां आएगी, फिर नहीं आएगी? ये नहीं आएगी तो क्या होगा? हम मुक्त हो जाएंगे ना, बराबर, फिर मुक्त हो जाएंगे ना, फिर किसी कोई परेशानी रहेगी नहीं ना। तो क्या दूसरा क्या समझने का है? देखिए भगवान है वो बंधे हुए कि मुक्त है? मुक्त है जी, मुक्त है, बराबर है। पर हम कैसे हैं? बंधे हुए हैं। तो भगवान को बोलने का साहब आप सभी प्रकार के बंधन से मुक्त हो गए, तो मुझे भी ऐसे निमित्त से मिला दो कि मैं भी आपकी तरह मुक्त हो जाऊं। नहीं बोलना चाहिए उनको? बोलना चाहिए जी। बोल दिया कि बोलने का है? बाकी है नहीं बोलने का? अच्छा मालूम ही नहीं था, ऐसा नहीं बोला, कोई प्रॉब्लम हो, अब आपकी गलती है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन हाँ मैं ये बात समझने की है। खाना बैठते हैं ना, तो माँ या पत्नी को पता नहीं चलता है कि आपको कितनी भूख लगी है, तो उधर भी रोटी मांगनी पड़े, एक और दो बोलना पड़ता है। बोलना पड़ेगा जी। उनको फिर पता चल गया फिर बोलना नहीं पड़ेगा, तो पता नहीं चला वहां तक तो बोलना पड़ेगा कि कैपेसिटी आपकी कितनी, कैसे पता चला? ठीक है, यहाँ भगवान के पास भी हमें ये मांग करनी पड़ती है, लेकिन हम तो कितने पक्के हैं। आमतौर पर भगवान से क्या मांगते हैं? क्या मांगते हैं आप? विनाशी चीज। मैं उनको पूछता हूँ, आपको नहीं पूछने का। सुनने वाले को बोल रहे जी, जानने वाले को। आमतौर पर हम क्या मांगते हैं भगवान से? भगवान से हम यही मानते हैं साहब, हाँ, हमारे से कोई भी किसी के प्रति बुरा कर्म ना हो, वो बहुत अच्छी बात है। और मेरे से भी बुरा कर्म ना हो, है? किसी की आत्मा को दुख ना पहुंचे। बहुत अच्छी बात है। तो फिर भी कुछ और तो मांगते होंगे ना? जो आंतरिक भगवान आपने बताया वो आत्मा है, आत्मा ही होगी। अभी जो मतलब हाँ बराबर है। बुलबुले के बाद में बुलबुले तो हम सब है। हाँ सब बुलबुल है, लेकिन किसी को पता ही नहीं चलता है ना। हाँ जी, बुलबुले तो हम सब हाँ है। हाँ हाँ। लेकिन आंतरिक भगवान आपने बताया था, लेकिन इनको सबको पता होना चाहिए आंतरिक भगवान जो है ना आत्मा है या नहीं सर? हाँ वही आत्मा है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं है, अंतर नहीं है उसमें। जो मैं बोल रहा हूँ वो उसकी पहचान कर ली तो काम बनेगा ना। अगर उसकी पहचान कर ली, वो पहचान हुई तो हमारा मनुष्य जन्म सार्थक हो गया। ना कोई गलत कर्म करेंगे, ना किसी को दुख फिर पहुंचाएंगे। करने का रहा ही नहीं है। आप खुद भगवान हो गए तो भगवान कुछ करते नहीं सर, क्यों? संसार चलाते ना, संस्कार चला, हम लोग पास शक्ति है जी तो उसका। संसार भगवान चलाते हैं कि हमारे कर्मों का फल मिलता है हमें। हाँ रिचपाल सिंह जी, हाँ जी, कर्मों का। हाँ हमारे कर्मों का फल मिलता है कि भगवान भी ये सब करते हैं? नहीं सब भगवान नहीं करते, अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। एकदम बात आपकी सही है, वो मिलेगा कि भगवान तो भगवान है। उसको, चाहे हम कुछ भी करो, कर्मों का फल। अगर हमने बुरे कर्म करे हैं, कुछ भी कर लो, चाहे गंगा जी में डूब कर मर जाओ, लेकिन वो तो भुगतना पड़ेगा। हाँ वो पाप धुलने वाला नहीं है। वो धुलने वाला नहीं। हाँ कोई में धुल जाएंगे किसी भी महाकुंभ में जाके डुबकी लगाओ, हाँ, वो पाप धुलते तो फिर तो वो पॉलिटिशियंस को ही स्नान करना चाहिए। फिर तो सभी हो जाएंगे सब। हाँ तो सब पवित्र हो जाएंगे तो फिर तो सब प्रॉब्लम पवित्र रहेगा हो ही नहीं जाएंगे। कहीं। जो वहां नहीं जा सकता वो दुखी रहेगा, बाकी पवित्र हो जाएगा। जिसके पास साधन है जाने का या वो पवित्र हो जाएगा, बाकी बेचारा जो बैठा है। यहाँ बात क्या समझने की है? हाँ सर, वो पानी वाली गंगा की बात नहीं है, हाँ जी, नहीं सर, यहाँ पश्चात रूपी गंगा की बात है। तो उसमें आप स्नान करेंगे तो आप धुल जाएंगे। हाँ, तो पानी वाली गंगा में तो इसका मन वचन क्या मैल, शरीर का ही मैल निकलता है। हाँ जी, और ऊपर से उसको मैली करते हैं गंगा जी को।
देखिए यहाँ पश्चाताप रूपी गंगा में आप स्नान करेंगे, वो भी कैसे है? तो कि आपको आपकी 100% गलती महसूस होने के बाद, हाँ जी हाँ 100% महसूस करेंगे तभी। 100% मेरी ही गलती है, ऐसा भान होने के बाद आप माफी मांगेंगे तो उसकी माफी अवश्य मिलेगी। अभी 100% मेरी ही गलती ऐसे मुझे दिखाई देगा तो आपकी गलती कितना प्रतिशत दिखेगी? 0। बात ख्याल में आ रही है ना? हाँ 0 है जी। हाँ तो 0 हो जाएगी ना। तो फिर मुझे किसी की गलती दिखती नहीं है तो मुझे कोई बांध सकेगा? कोई नहीं बांधेगा। नहीं बनते। पर जहां तक मुझे दूसरों की गलती दिखती है, मैं बोलता हूँ आप गलत है गलत है, तो वो भी मुझे छोड़ेंगे? नहीं छोड़ेंगे। देखिए यार, ये पश्चाताप रूपी गंगा में डुबकी लगाएंगे तो आपके पाप धुल जाएंगे, तो आपके वो कर्म कट जाएंगे। देखिए यार, ये जो तीसरी मैंने जो भावना बताई ना, कि जो भी भगवान को मानते उनको बोलने का कि सब आप तो सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो गए, कि मुझे ऐसा निमित्त मिला दो कि जिसके कारण मैं भी आपकी तरफ मुक्त हो जाऊं। करना है ना ऐसा? नहीं साहब, नहीं करना? उसके लिए तो काफी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो अनंत अवतार से पर्यटन करते हैं, ये पहली बार थोड़ा पर्यटन कर रहे हैं। पर्यटन मोक्ष को प्राप्त होना तो बड़ी वो है। मोक्ष आपसे दूर नहीं है, नहीं दूर तो नहीं जी, आप खुद ही मोक्ष स्वरूप हो, लेकिन केवल मान्यता का अंतर है। मान्यता क्या है कि मैं रिचपाल से जी हूँ, इससे आप टेम्पररी हो गए। कि मैं ही आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं ही भगवान हूँ, वो भान हो जाए तो फिर तो ठीक है, मोक्ष होगी। तो मोक्ष यही है। देखिए ये दशा प्राप्त हो सकती है, ये समय आपको मिल सकता है बच्चे की वजह से। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं। अक्समाकल में नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। तो बात सही लगी ना? ये बहुत अच्छी लगी साहब। भगवान के पास मांगते रहना, और नहीं दे तो डांटना, नहीं, सही है जी। और मेरा नाम देना कि बोले कि इसको पूछ के नहीं, डांटा, नहीं, तो साहब, मेरा नाम बोल देना। बहुत अच्छी बात लगी, इसीलिए जो है ना अंदर नहीं नहीं बराबर है। अंदर सब फिट हो गई। हाँ, और वो प्रार्थना याद नहीं है तो प्रवीण जी को बोलना, वो व्हाट्सएप कर देना। मैं तो रोज का मेरा काम है। हाँ तो व्हाट्सएप कर देंगे आप। रोज मिलते रहते। हाँ तो बहुत अच्छा है। वो प्रार्थना में उनसे ले। हाँ जरूर जरूर। ठीक है। जय सच्चा। पूछो, चलो दूसरी बात करो। बोलिए अशोक जी को प्रश्न। हाँ बोलो। अकेले क्यों आए? परमिशन क्या है? आप अकेले क्यों आए? झगड़ा करके आए? तो फिर ऐसा क्यों करते हैं? फिर कल से अकेला मत आना, शाम से लेके गए। उनको कुछ काम तो नहीं था घर पर। आप उनको लाभ लेने का मौका नहीं दिया तो आपका नेगेटिव बन जाएगा ना हिसाब। आपको कमाई मिलती, वो जो कमाते उसमें कमीशन मिलता है, कमीशन चला गया आपका। नहीं है ऐसा जयराम जी? आपका पड़ोसी है फिर भी आप समझाते नहीं। कैसे चलाएगा? पुराने पड़ोसी है। हाँ? चला तो देगा। तो कच्चे नहीं पढ़ने देने का। हाँ। बोलिए चलो। परमिशन हाँ क्या चीज है, मतलब इसकी परिभाषा क्या है? आओ। पर्यूषण ये क्या हिंदी शब्द नहीं है, अर्धमागधी भाषा का शब्द है। तो उसका मतलब क्या है कि आत्मा के सन्मुख होना। जगत के लिए क्या है कि जब ये पर्यूषण पर्व आता है तभी सन्मुख जाने का प्रयत्न करते हैं। और हमारे लिए क्या है? रोज पर्यूषण है।
बात खत्म आ रही है। रोज पोल्यूशन है ना, क्यों? एक हम जागृत है, किसी गलतियां जैसे दिखते हैं तुरंत उसका हल निकाल देते हैं, वेट नहीं करते हैं। चलो थोड़ा देर हो जाए फिर बाद में धोएंगे गलतियों को, ऐसा नहीं करते। देखिए यहाँ भगवान को पूछा कि गलती होती है तो हमें क्या करने का? उन्होंने क्या पता गलती होती है, आपको पता चला तो तुरंत उसकी दवाई कर देने का, शूट ऑन साइड प्रतिक्रमण करने का, बराबर। तो सब वो भी नहीं कर पाया तो हम तो बुद्धिशाली है ना, तो भगवान का भी तेल तो थोड़ा निकालेंगे। ये वो नहीं कर पाया तो हमें क्या करा? और कुछ दवाई दिखा दो, क्या बताया? तो सारे दिन में जो गलतियां होती है उसका रात को प्रतिक्रमण करो, और सारी रात में जो गलतियां होती है सुबह में उठकर प्रतिक्रमण करो, देवसी रायसी बोला। वो नहीं होता है तो 15 दिन में एक बार करो, नहीं तो 4 मास में एक बार करो, तो वो भी नहीं हो तो लास्ट में संवत्सरी प्रतिक्रमण भी करो, साल में एक बार भी करो, बराबर है। हम कितने पक्के हैं? लोगों की बात करता हूँ, हम कितने पक्के? 365 दिन तक कपड़े इकट्ठे करते रहते हैं, और फिर लास्ट डे पे सब कपड़े धोने के लिए बैठेंगे। शक्ति वाले ना आप तो हाँ बोलेंगे, लोग हाँ नहीं बोलेंगे। वो तो बोलेंगे 365 दिन का कपड़ा देख के बोलेंगे लॉन्ड्री में दे दो। हम साफ करने वाला नहीं है, वॉशिंग मशीन भी ना बोल देगी, तो इतना ज्यादा देर हम लेने वाले नहीं है। बात ख्याल में आ रही है? फिर 365 दिन के कपड़े इकट्ठे किए तो कौन से कपड़े पे दाग है, कौन से पे नहीं है, कहाँ दाग पड़ा वो कौन देखेगा? तो कपड़े धोए कब बोले जाते हैं? ये सब दाग चले जाते भी, बराबर। वैसे मन वचन का के कपड़े भी दाग गिरते ही रहता है ना। दूसरों की गलतियां दिखी, उसका क्या होता है कि हमारा कपड़ा दाग वाला हो गया है। तो जहां तक ये कपड़ा दाग वाला है वहां तक मुक्ति हो नहीं सकती है, तो दोनों विरोधाभास है। देखिए यार क्या है कि हमारे पोल्यूशन रोज क्यों है कि रोज हमारा फोकस इसके पर ही है। ये मनोवचन क्या है कि कैसे जल्दी से जल्दी शुद्धि हो जाए, उस पर हमारा गौर है। तो क्या होगा? इसको शुद्ध करना पड़ेगा कि शुद्ध होता जाएगा, होता जाएगा। ठीक है यार, जैसे कपड़े में चाय गिरी, कितनी भी अच्छी चाय है टेस्ट में, चाय पूरी करने के बाद में वो दाग निकालने के लिए जाएंगे ना, क्यों? तो चाय तो अच्छी है ना, कपड़ा दूसरा भी आएगा, चाय थोड़ी दूसरी आने वाली है। वो चाय को वापस दोबारा गर्म को टेस्ट बदल जाता है, नहीं बदलता? बदलता है कि नहीं बदलता? तो बहन लोगों को पूछना चाहिए, आपको तो पता ही नहीं चलेगा, टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग वो केटल में बना के भर के रखते नहीं है, केटली में रख देते हैं, वो फौरन में रख देते हैं। यहाँ कोई ऐसा नहीं करता है, तो मेहमान आएंगे या पीनी है तभी बनाएंगे। देखिए यार, हमें ख्याल में आता है कि एक बार बना के रख दी, फिर दोबारा गर्म कर टेस्ट चेंज हो जाता है। तो वैसे यह भी क्या था कि यार जैसे दोस्त पता चला तो उसकी दवाई कर दो, घाव लगता है ऐसा सोचते हैं, 2-4 दिन के बाद डॉक्टर के पास जाएंगे, क्यों? तो 2-4 दिन के बाद भी जा सकते हैं ना, और ज्यादा बढ़ जाएगा। उधर समझ कितनी पक्की है। जब ये तुरंत दवाई नहीं करेंगे तो गांव में पास भी लग सकता है और लंबा चलेगा। इससे अच्छा है कि डॉक्टर पैसे ले जाता, ठीक है, लेकिन दवाई कर दो, या तो घर पे भी कर देंगे,
वो तो वेट नहीं करते हैं। और यहाँ क्या करते हैं? 365 दिन तक चलने दो, फिर बाद में लास्ट में कपड़े धो देंगे। डॉक्टर साहब भी क्या करते हैं? फिर कोई पेशेंट आया, उसने बोला भाई ऐसा ऐसा है, तो तुरंत दवाई दे देंगे। अब बोलेंगे भाई थोड़ी धीरज रखनी पड़ेगी। हर एक बात में तुरंत असर नहीं आती है, असर धीरे धीरे आनी शुरू होती है। वो धीरज है तो काम का प्रॉब्लम नहीं आता है। अब तो कैसे है, फौरन से एक लड़का शादी करने के लिए आया, तो रिश्ता पापा मम्मी ने बना के रखा था, तो सारी लड़कियां देख ली, एक भी पसंद आई नहीं। वापस आने का टाइम भी हो गया, तो 2-3-4 वीक के लिए आते हैं ना, छुट्टी लंबी होती नहीं होता। वापस आने का टाइम हो गया, तो किसी ने सोचा कि चलो मेरी बेटी है, फिर संजोग है तो सामने आ गया संजोग, चलो स्टेशन पे भी दिखा देते हैं। तो स्टेशन पे दिखा दी, उसको पसंद आ गई, वो बोलता है कि अभी अभी शादी करा दो। हो सकती है, ठीक है, मुहूर्त निकालना पड़ता है, वो सब करना पड़ता है, सब व्यवहार तो देखना पड़ता है। तो ऐसे हम भी क्या करते हैं, अरे भाई तुरंत कर दो, दवाई के असर तुरंत होनी ही चाहिए। अनंत अवतार से जो भव रोग लगा हुआ था, दादा ने क्या किया, उसके गौरी मूल में दवाई डाल दी। बाहर से तो पेड़ एकदम हरा भरा हुआ दिखता है, लेकिन क्या हुआ था कि उसमें उसके जो दौरी मूल था, रूट था, मेन रूट, उसमें दवाई डाल दी। तभी क्या होगा, तो भीतर से सूखना शुरू हो जाएगा। हमें कुछ मेहनत करनी पड़ेगी, हमारे लिए कोई मेहनत रखी है। फिर भी क्या बताया कि जो गलतियां होती है उसको धोते रहो, साफ करते रहो। तो ऐसा कभी हो सकता है? संभव है? कोई काल में संभव हुआ था? अगर हुआ होता तो हम कब के मोक्ष में बैठे होते, यहाँ नहीं बैठे होते। लेकिन वो बात हम समझे ही नहीं थे कभी, तो कभी हमें वो भूख लगी भी नहीं थी, तो परोसने वाले तो तैयार बैठे थे। भूख ही नहीं थी, हम खाना खाएंगे? बच्चों को खेलना है, अब कितना भी बोलेगा भाई खा लो खा लो खा लो, खाएंगे? तो किचन समेट लिया आपने, फिर आके बोलेगा दादी भूख लगी है, नानी भूख लगी, ऐसा बोलता है? मैं आपको बोला भाई सब खा रहे तभी खा लो, नहीं भूख है ही नहीं। वो चिप्स का पैकेट दो तो खा लेगा, और सब्जी रोटी बोला तो नहीं खाएगा, दाल चावल बोला तो नहीं खाएगा। भूख नहीं है उसकी। वो बाद में भी बोलेगा लेकिन क्या खाने का, वो दाल रोटी सब्जी चपाटी खाएगा कि नहीं? जो खाना है वही मांगेगा। ठीक है, कई तीर्थंकरों की सभा में बैठ के हम आए, सबको धोखे पी गए। धोखे पिया तो अच्छा काम किया, धोखे पिया तो अच्छा काम किया, तो से काम नहीं निकला उधर, तो धोखे पी गए इसलिए। तो चरणामृत लिया होता तो काम हो जाता नहीं। ठीक है, ऐसे सब आते रहते हैं, ये तो सब बोले, उनको तो क्या, वो साधु हो गए, उनको क्या समझ में आएगा? ठीक है, ऐसी अलग अलग तरह की भीतर हमारे भीतर ग्रंथि पड़ी हुई थी, मान्यता पड़ी हुई थी। देखो, वो परोसने के लिए बैठे थे, फुल डिश दे रहे थे, फिर भी हमने खाई नहीं। तो गलती उनकी है ना, समझा के खिला देना चाहिए।
कि ये लोग क्या करते हैं, बच्चों को समझा के नहीं खिलाते। चलो अभी खा लो, फिर बाहर जाते हैं घूमने के लिए, फिर बाहर कुछ दूंगा, ऐसा नहीं बोलते। खा लो फिर बाद में टॉफी दूंगा, नहीं बोलते। तो लॉलीपॉप चिपकाते ही है, ऐसा ही करते हैं। तो खाना खाएगा, पेट भरेगा तो याद भी नहीं करेगा फिर। उधर भी वैसे भी तीर्थंकर कैसे है, वो मित्रा गोयल है, वो खटपट करेंगे नहीं कभी, ये बात समझ लो, ये पाने जैसी बात है, आपके फायदे की है, ऐसा कुछ भी नहीं बोलेंगे। आपको भूख लगी, आप मांगेंगे तो खाना दे देंगे। बोलेंगे नहीं पेट भरा हुआ है तो ये जय सच्चे हैं। उनके पास आके मैं बोलूं मेरी सेहत तो बहुत अच्छी है, तो दवाई देंगे, कुछ भी देंगे। तो मैं बोलूं भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो फिर दवाई देंगे। देखो वैसे यहाँ भी भगवान के पास हमें खुला होने का है, तो खुले हो गए तो देने के लिए बैठे हैं। हम तो कितने पके, हम तो हमारा पात्र भर के लेकर गए थे, खाली करके लेके नहीं गए थे। कहना तो होगा सब कमाई करते करते हैं, मतलब वो सारी कमाई लेकर तो जाना पड़ेगा ना उनके पास। कमाई किया था रमेश जी, वो सारी कमाई अनंत अवतार से कमाई करके आया तो भगवान के पास वही लेके जाना पड़ेगा। वो कमाई सही थी, वो कमाई सही थी नहीं, तो वे पात्र खाली करके जाना चाहिए ना। हम तो भर के गए थे, तो फिर क्या होता है कि देने वाला देगा तो क्या होगा, ऊपर जाएगा, बर्तन वैसे से बाहर आएगा, तो बचेगा क्या आपके पास। ठीक है, हाँ ऐसा क्यों बता कि बर्तन खाली करके जाने का है, क्योंकि आज तक हमने जो भी जाना था वो सारे प्रकृति का, पुद्गल का ही जाना था, विनाशी भाग का ही जाना था। अविनाशी समझे ही नहीं थे तो उसकी एबीसीडी कैसे आएगी। देखिए इससे पता है कि ये मैं कुछ जानता हूं, मैं कुछ समझता हूं, वो बर्तन खाली करके जाने का था। वो बर्तन खाली करके गए तो वो तो देने के लिए बैठे हैं। कबीराज ने लिखा है पद में, अमे दरी चामची तमे रेड़ो सागर। हम तो कितनी समझ वाले थे, चम्मच लेके गए थे, तो सामने दादा ने क्या किया, पूरा सागर दे दिया, डाल दिया। इससे दादा बोलते थे यहाँ जो भी मांगना है मांगो, आप मांगते शर्माएंगे, मैं देने में शर्माने वाला नहीं। वो रिलेटिव कमाई होती तो देकर खाली हो जाते थे, रिलेटिव कमाई तो खाली हो सकती है ना। ठीक है, आज रियल कमाई की बात थी, तो जितना बांटते जाएंगे उतना वो कम होगा ही नहीं, बढ़ता ही जाएगा। तो हमें क्या लगता है तो सबको दे देंगे, फिर हमारे क्या पास क्या बचेगा। होता है कि नहीं होता है ऐसा, जरा में विचार तो आएगा ना, तो मन है बुद्धि दिखाएगी तो सही ना। यहाँ ये बात समझने कि यार जो हमारी समझ थी वो केवल सांसारिक चीजों के लिए थी, आत्मा की तो एबीसीडी जानी ही नहीं थी। वो जानने की इच्छा है तो दादा हमें परोस सकते हैं ना। कल रात को ही बात हो रही है, गीता के 18 अध्याय निकल गए,
कुरुक्षेत्र के रण मैदान में। कि कोई भी बुद्धिशाली आदमी तो नहीं सोचेगा कि अर्जुन को इतने सारी बातें बताई, एक भी बात समझ में नहीं आ रही थी, और 18 अध्याय करने में टाइम कितना जाएगा? ठीक है, दुर्योधन वहां तक वेट करके बैठेगा भी 18 अध्याय पूरा हो जाए, बाद में युद्ध शुरू करता हूं, ऐसा करेगा? तो सीधा तीर लगा के काम शुरू कर देगा, चलो उड़ा दो, पूरा हो गया काम। क्या बात समझने की है। उस समय के नियम के अनुसार रणभूमि में चक्कर लगाते हैं तो देखते भी हमारी सेना इस साइड है, दुश्मन की सेना है, इसका रक्षण करने का, इसका नाश करने का। तो चक्कर लगा के वापिस अपनी जगह पे आए। अर्जुन को क्या हुआ, ये तो मेरे भाई है, भतीजे, मामा है, चाचा है, गुरु है, भीष्म पितामह है, तो उनको मारने का मुझे, उनको मार किस लिए मारेगा? राजपाट पाने के लिए? एक ऐसा मुझे नहीं चाहिए। आने के बाद क्या किया, वो गांडी धनुष से रथ के नीचे रख दिया, तो मुझे नहीं चलाना। तभी कृष्ण भगवान ये सारी बातें उसको समझा रहे थे, तभी भी कृष्ण भगवान जानते थे कि भाई ये सारी बातें मैं उसको समझा रहा हूं, लेकिन वो समझने वाला नहीं है। फिर भी पॉजिटिव रह के उन्होंने सारी बातें बताई उनको। अंत में अर्जुन ने क्या बोला, मैं मति मूड हो गया हूं, मुझे आपकी कोई बात अंदर फिट नहीं हो रही है, ब्लंट हो गया हूं मैं भी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी कृष्ण भगवान ने समझा कि ये अनजाने में अपनी बुद्धि की हार का स्वीकार कर रहा है। क्यों? एक आत्मा का जो अनंत ज्ञान है वो अपनी बुद्धि से समझने का प्रयत्न करता था, तो बुद्धि तो लिमिट वाली है, तो सीमा वाला दृष्टि असीमित को कैसे देख सकती है, कैसे पा सकती है? ठीक है, यहां अनजाने में उसने अपने अहंकार समर्पित कर दिया, बाद में अर्जुन को दिव्य चक्षु दिया, वो भी केवल 5-10 मिनट के लिए दिया। उसके बाद युद्ध किया, लाखों करोड़ लोगों को मार दिया, फिर भी उसी जन्म में मोक्ष में गया। आपने कितने खून किए? अशोक जी, एक भी नहीं की। आप अर्जुन से ज्यादा लायकात वाले नहीं, तो भगवान को नहीं बोलना चाहिए मैं उनसे ज्यादा लायकात वाला हूं, तो मुझे भी प्राप्ति कराओ, तो ये नहीं बोलना चाहिए। बात तो समझनी चाहिए। ठीक है, यार हम भी लायक ही है, लेकिन उन्होंने अनजाने में समर्पित किया, वैसे हमें भी समर्पित तो करना पड़ेगा। ठीक है, दादा मैंने बताया तभी पता चला भी अहंकार ममता समर्पण करने के लिए। आमतौर पर क्या लगता है भाई मनोवचन क्या समर्पण कर, तो मेरा धन मन सब ले लेंगे तो मेरे पास बचेगा क्या? तन मन धन सब समर्पण कर दिया तो फिर मेरा तो रहा ही नहीं ना, तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। ठीक है, सही मायने में देखो, भगवान को इस संसार की कोई भी विनाशी चीज की जरूरत नहीं होती है, वो खुद अविनाशी सुख में रहते हैं, तो विनाशी चीज तो उनके लिए कुछ है ही नहीं। तो घास जैसी है उनके लिए, घास की कीमत कितनी करेंगे? कुछ नहीं। कि क्या ये बात समझ में आ जाए? देखो, एक दूसरे के साथ हम व्यवहार करते हैं,
कीमत किसकी करते हैं? भीतर के भगवान की कि व्यवहार की? व्यवहार की व्यवहार की। तो सही में क्या होना चाहिए? भगवान जी की देखो बच्चे गलती करते तो बोलने का बेटा ये गलत किया, ऐसा नहीं बोला कि नहीं बोलने का है। हम क्या करते हैं, आपको पहले ही बोला था, सो गए थे क्या? ऐसा ऊपर से डांटेंगे, ऐसा बराबर ध्यान रख के पढ़ाई कर, क्यों नहीं किया? तो नहीं किया तभी तो फेल हुआ यार, कम मार्क आ गए, अभी डांटने से मार्क ज्यादा आएंगे कि नहीं? तो बोलने का अभी देख रिजल्ट आया, कम मार्क आ गया, तो आपको आनंद हो रहा है कि दुख हो रहा है? तो बोलेगा आनंद हो रहा है, नहीं बोलेगा। लेकिन उसको ये भान होना चाहिए कि भैया मेरी गलती हो गई, वो भान हो गया, फिर और कुछ आपको करने की जरूरत ही नहीं है ना। बात ख्याल में आ रही है? रिया निदान है भी, ये इसमें धमाल मस्ती नहीं करते, हम करने वाले हैं। बच्चे छोटे तो वही धमाल करेंगे, हम करने वाले हैं। और हृदय धमाल करेगा ज्यादा कि बात करेगा ज्यादा? छोटा वाला ज्यादा करेगा। ऐसा ही होता है, जैसे जैसे समझ खड़ी होती जाती है वैसे धमाल मस्ती कम हो जाती है। और वो एज में हम क्या करते हैं, उस एज में हम क्या करते हैं? हम तो बहुत सियाने थे ना प्रमा देवी, हम तो कोई धमाल मस्ती करते ही नहीं था, तो वो तो हमें दिखता ही नहीं है। हम कहते वो सब सही और दूसरे कहते वो सब गलत, ऐसा? ये बात समझनी चाहिए। देखो उनका दृष्टि बिंदु है, उनकी दृष्टि में क्या है कि ये करने जैसा है। अभी हमें लगता है हमारे अनुभव से कि ये बात पकड़ के रखने जैसी नहीं है, क्योंकि ये पकड़ के रखेंगे धमाल मस्ती को पकड़ के रखे तो आगे जाकर उनको ही नुकसान होने वाला है। आप तारण निकाल के बैठे इसलिए आप नहीं करते हैं, तो उसको जहां तक तारण निकला नहीं है वहां तक क्या करने का? तो उसको तारण निकाल पाए ऐसी समझ देने की है, तो तारण निकल गया फिर बोलना पड़ेगा कि ये मत करो, ये मत करो। कभी नहीं बोलना पड़ेगा। कितना आसान हो जाता है, आसान हो जाएगा कि करना पड़ेगा? आसान हो जाएगा, ये समझने का है। हर एक का व्यू पॉइंट का स्वीकार कर लिया, उनको सुनने के बाद आपकी बात करेंगे ना, तो उसका आपकी बात सुननी पड़ेगी। आमतौर पर हम क्या करते हैं बच्चों के साथ, उनकी सुनते नहीं अपनी बोलते, तो वो भी क्या करेंगे, वो हमारी भी नहीं सुनेंगे। आप हमारी नहीं सुन रहे, चलो हम भी कान बंद कर देते हैं, तो फिर हल क्या निकलेगा? दोनों परेशान होंगे। देखिए यहाँ दादा ने सिखाया हमें कि पहले सामने वाला जो बोल रहा है वो समझ लो कि कौन से व्यू पॉइंट से बात कर रहे हैं। उसका व्यू पॉइंट ख्याल में आ गया तो फिर हम उसको समझा सकते हैं ना, बेटा ये बराबर नहीं है, ये करने जैसा मुझे नहीं लगता है, फिर भी आप देख लेना कि करने जैसा है कि नहीं। तो वो भी सोचेगा कि भैया पापा मम्मी है कि नाना नानी है, दादा दादी है, मुझे प्रेशर तो नहीं करे, मुझे समझने का बोलते हैं, मैं भी प्रयत्न करूं। सोचेगा तो पता चले भाई मेरी बात बराबर नहीं है, तो बात बराबर नहीं है ऐसा तारण निकल गया, फिर पकड़ के रखेगा? नहीं रखेगा। आप सीधा हंटर मारने जाएंगे तो बोलेगा नहीं मैं भी दिखा दूंगा। ये टाइम तो एक सब्जेक्ट में फेल हुआ, दूसरी बार सब में फेल होकर दिखाएंगे। देखिए ऐसी उल्टी गांठ बांध देता है।
ठीक है, हमें तो उसको वो गलती में से बाहर निकालने का है, तो बाहर निकल गया, फिर कुछ करने का है नहीं। चलो कुछ प्रश्न है तो बात करो, घड़ी अपना काम कर रही है, हो गया टाइम हो गया। हाँ घड़ी दिखाने का, तो मैंने घड़ी देख ली ऐसे ही मुझे ध्यान में आया। दादा भगवान ना सीम जय जयकार हो। 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 दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। दादा भगवान ना असीम जय जयकार हो। जय सच्चिदानंद। दो तीन 4 नवंबर दादा ओरगन की जन्म जयंती वडोदरा में किलन कुंवर तरसाली में 2, 3, 4 नवंबर और 24 से 28 दिसंबर तिवरी ज्योति शिविर है। दिसंबर में है, दिसंबर में 24 24 से 28। से 28 दोनों ख्याल रखना, आ जाना टाइम से। जय सच्चिदानंद।